लोगे ना कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो वही आएगा, वही होगा। कहीं चल रहा है उसको वो चला, अपने काम से काम रखो ना भाई। किया था और वो हो गया है मेरी लाइफ। रहोगे तुम पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे वो 5 से 50 हो जाएंगे, ठीक है। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'll be discussing about my personal experience of manifestation. I'll be dropping some manifestation mistakes also, why you should start trusting in manifestation, and let's see what else. So what happened was, I was a person who even got failed and in a subject known as social science. Yes, I have. I won't be discussing about my failure, but yeah, I'll be talking about how I went into manifestation. Okay. So what happened once was that in 10th board exams, I didn't study one topic, and that topic didn't even came in exam. Like for the past 10 years, it was not in the past 10 years question paper. So I didn't study it and I skipped it. So while I was going to give my exam, I was focusing on this one thing. What my exact words were, कुछ भी आ जाए एग्जाम में, बस ये वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है. These were my exact words, and I remember how many times I've repeated that. My two friends were sitting beside me in a bus. We were going to the exam center. We were in the school bus, our school bus. Okay, and I was focusing on this energy only, that कुछ भी आए एग्जाम में, बस ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए. And there were 3 sets. I got 3rd set, and that question came of 5 marks. Why? Because I was focusing on that energy. Okay, one important thing today I'm gonna tell you. What is in the dictionary of universe? No, N-O, no doesn't even exist. Okay, so what I was saying, that कुछ भी आ जाए ये ना आए, अब वो ना शब्द स्किप हो गया है, so क्या बचा है, कुछ भी आ जाए ये आ जाए. And I manifested it. I didn't knew about manifestation at that point of time. I focused my energy on that and मेरे पास वो आ गया, ठीक है, because universe ना नहीं लेता है, ठीक है. So that's how I manifested that question in my set only. It wasn't there in set 1 and 2, it was in set 3 only, which I got, unfortunately. I'm a person who got failed, remember that. Now there are 2 sections of that particular subject known as commerce in my school, ठीक है. 34-35 children in my section, and same goes for the other one. 60-70 students we'll take, and out of them I was the one who topped the class. The person who wasn't able to get passed, ठीक है, that same human topped in the class. Not second, not third, I was the first one. Okay, I got the highest in commerce in those 60-70 students. I got a good score in 12th also. I got 95. I'm not bragging about my marks, but I'm telling you how I reached there. That is through manifestation. I have studied hard. Now people will say, now if you're going to do that, I'll be manifesting stuff, and then I don't even know the name of the subject. I don't know that commerce contains accounts, business and economics. Okay, and I don't know anything, and I just start manifesting that I'll get good grades and I'll just go and sit in the exam center and I'll be like, okay, so I'll be topping or something. No, nothing's gonna happen. You have to do your work, okay? Do your work, do your part, start manifesting, start believing, and you'll get the results if you believe it. Okay, I'm sharing my personal experience because maybe it could be an inspiration for someone else. Okay, so I did my part. Okay, I studied hard. I know I studied hard, and I also believed in manifestation. That's how I reached there. And but with time, I have talked about this in my previous video, that don't obsess over something. After that, I was too serious about my career that I want NIFT Delhi. I wanted to do designing and all that. I was so focused on that. I was so obsessively manifesting it that when I gave the entrance exam of NIFT that year, I didn't got into any college. Okay, I cleared the first round. In second round, the rank I got. The rank was so nice that I wasn't able to get in any center of NIFT. दिल्ली तो गया भाड़ में. दिल्ली is the top one, so कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है. तो फिर I realized with time that I was obsessing over it. उसी के बाद I came through this video and I just searched about it, researched about it, so I got to know that my manifestation isn't here. Why? Because I was obsessing over it. I prepared again. Okay, I started manifesting again, but I wasn't obsessed with it. This time, I cleared my first round, second round. I also got into NIFT Delhi. I give a lot of credit to manifestation, but this doesn't mean that you'll stop working hard. You should work hard, and you should also believe in manifestation. That's how it's gonna come. Because you have listened to that thing, ना, मेहनत का फल मिलता है, ठीक है, तो वही होता है. बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योर करके चल रहे हैं मैनिफेस्टेशन चीज़ों को, ठीक है. लोग लाइटली लेने लगते हैं चीज़ों को कि मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है, अब तो आई एम गोना गेट इट.
this is not how it works. Okay, so do your part, believe in manifestation, that's it. Again, I'm going to talk about gratitude only, because with time I have realized that how much gratitude is important. See, if I'll take an example, a basic example, if I'll talk about a glass. Now we have a glass जिसमें हाफ में पानी है और आधा ग्लास भरा नहीं है. There are two perspectives, no, of seeing it. Some will say यार ये तो आधा खाली है, ठीक है. On the other hand, someone would be like कि यार ये तो आधा भरा हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट मैं पी लूंगा, इतना तो मेरा काम चल जाएगा. हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना देखने को, ठीक है. Why are you focusing on negative one always? ठीक है. People have been focusing on negative इतना, so the thing will focus ज़्यादा जिस पर ना, whatever thing you are focusing on, you will get that only. I told about थोड़ी देर पहले मेरा ही एक्सपीरियंस कि how I manifested that particular question. ठीक है. उस ग्लास को आधा खाली है, तुम उसे उस तरह क्यों देख रहे हो? तुम ये देखो ना कि वो आधा भरा हुआ है, ठीक है. तुम इसी तरह ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ में क्या नहीं है. यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, यार मेरे पास है नहीं, मेरे पास पैसे हैं ही. ये तुम नहीं बोलोगे भाई, ठीक है. जो चीज़ें हैं एटलीस्ट उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो. जितना है पैसा, 10 रुपये नहीं है तो क्या 5 तो है तुम्हारे पास, एटलीस्ट उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे वो 5 से 50 हो जाएंगे, ठीक है. तो भाई नेगेटिव पे फोकस मत करो, पॉजिटिव पे करो. हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकालो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो. मैं बता रही हूँ, इट्स गोना कम, मतलब डबल होकर ही आएगा वो. आई कैन गारंटी यू. एंड नेवर थिंक कि तुम लालची हो रहे हो. क्यों? अगर तुम चाहोगे ही नहीं कि तुम क्लास के टॉपर बनो, तुम चाहोगे यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें मेरे को करनी ही नहीं है, ठीक है, तो भाई नहीं होगा. मैं बता रही हूँ ना अपना खुद का एक्सपीरियंस क्यों दिया है मैंने यहाँ पे, कि भाई मैं फेल हो रही थी. अब एक बहुत ही सब्जेक्ट होता है लोकली, सोशल. मैथ्स में नहीं हो रही हूँ, सोशल में हो रही, ठीक है. अब वो बंदा जो फेल हो रहा है, वो बंदा क्लास की टॉप कर सकता है खुद पे बिलीव करके, खुद की मेहनत करके, मैनिफेस्टेशन करके, तो कुछ भी हो सकता है. बस पॉजिटिव पे फोकस करना है. जब तक तुम लाओगे नहीं चीज़ कि भाई मेरे को 100 में से 100 चाहिए, तो यूनिवर्स देगा कैसे? तुम दुआओं में ही 70% मांग रहे हो, तुम्हें मिल 50 भी नहीं रहे फिर, और तुम उसको डाउट कर रहे हो इसलिए नहीं मिल रहे हैं तुम्हें. तुम सोचो ना, तुम सब करने के केपेबल हो भाई. तुम सोचो तुम्हारे 100 में से 100 आ रहे हैं भाई, ठीक है. तुम सोचने में कुछ नहीं जाता. सी व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय मार्क्स, क्या हुआ था? आई वाज मैनिफेस्टिंग कि हाथ में रिपोर्ट कार्ड है और इतने शानदार मार्क्स आए मेरे कि भाई मैं तो टॉप कर लिया, ठीक है. और मैं बता नहीं सकती ना, मैंने 11th में लिटरली मैं वहाँ पे गई हूँ, मुझे एक क्लासमेट मिली है, कह रही तुम्हारे इतने आए, तुम्हारे सबसे ज़्यादा आए क्लास में. एंड आई एम लाइक भाई मुझे खुद मतलब ये सच में हुआ है. एंड आई लिटरली वही चीज़ जो मैंने विजुअलाइज करी थी ना मैनिफेस्ट करते हुए, कि मैं रिपोर्ट कार्ड खोलूँ, इतने मार्क्स देख के मैं आज चौंक जाऊँ और मेरे माँ बाप जो भी उस वक्त रिजल्ट लेने गए हैं वो चौंक जाएँ. और हुआ गई. मैं अपनी मॉम के साथ गई हुई थी, वहाँ मैंने देखा, मैंने रिजल्ट देखा, सर कह रहे हैं सबसे ज़्यादा आए हुए हैं. एंड मैं यूँ देख रही हूँ, मैं चौंक गई. मम्मी को देख रही हूँ, मम्मी भी स्माइल कर रही है बेसिकली, ठीक है. तो मैंने वो मोमेंट मैनिफेस्ट किया था और वो हो गया है मेरी लाइफ में, ठीक है. अगर तुम नहीं सोचोगे ना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ज़्यादा. भाई सोचो, ज़्यादा सोचने में कुछ नहीं जाता. कुछ जा रहा है क्या, वक्त जा रहा है क्या, वो तो रील्स में भी निकल जाता है स्क्रॉल करते करते. थोड़ा सा वक्त और जाएगा ना अच्छा सोचने में क्या. और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्यों, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है और मुझे हर तरह के रिव्यूज़ मिले लोगों से. कुछ लोग बिलीव कर लेते हैं, कुछ लोग सच में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग डाउट करके मुझे इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि भाई लालची नहीं होना, भाई इतना कैसे मेरे को मिलेगा. भाई करके तो देखो. करने में पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, वक्त जा रहा है, वो तुम रील्स स्क्रॉल करते हो निकाल देते हो, तुम इधर से उधर टाइम पास करते हो निकाल देते हैं. सी ह्यूमन नेचर है, तो तुम उसमें से कुछ 1-2 मिनट विजुअलाइज करने में नहीं निकाल सकते. तुम अगर रोज 2 मिनट बैठ के विजुअलाइज कर लो, 2 मिनट बैठ के अफर्मेशंस लिख लो कि भाई मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम्हारा 2 मिनट में कौन सा वक्त चला जाएगा मुझको ये बता दो. 2 मिनट लेट हो जाना तुम, अगर तुम्हें रात में करना है तो भाई करो. चीज़ें अच्छी हैं तो करना चाहिए उनको, खुद की लाइफ बेटर बनेगी. सी हमारे आसपास एनर्जी है, हम खुद एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है, ठीक है. इफ़ यू विल स्टार्ट गॉसिपिंग, इफ़ यू विल बी स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, सी गॉसिप से हमारा ना एनर्जी कम होता है, ठीक है. एंड हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं. हमें मैनिफेस्ट करने के लिए और रिसीव करने के लिए उस जगह पे होना चाहिए जहाँ बहुत बैलेंस जगह पे होना चाहिए, ठीक है. अपनी एनर्जीज हम खराब करते हैं नेगेटिव बातें बोलते बोलते. मैंने जैसे ही कहा कि अगर चीज़ें ज़िंदगी में नेगेटिव हो भी रही हैं बट कुछ तो पॉजिटिव होगा. मैंने जैसे बताया कि एक तुम सुबह अगले दिन तुम उठ रहे हो, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो. तो अगर तुम नेगेटिव चीज़ तुम्हारी हो रही है एंड उसको तुम यूनिवर्स में डालोगे ना दूसरे से गॉसिप करते हुए, तो तुम्हारी एनर्जी खराब होंगी, तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे और तुम्हें लाइफ में नहीं मिलेंगी चीज़ें, ठीक है. कभी भी गॉसिप में एनर्जीज नहीं
करनी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम इंसान ऐसा हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है, तो कभी कभी शेयर करता है, ऑब्वियसली शेयरिंग करनी चाहिए। बट अगर तुम रेगुलर बेसिस पे कॉल करके कुछ भी करके किसी से मतलब कुछ भी करके गॉसिप करके रोज एक ही एक बात बोलोगे ना कि यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो लिटरली आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो मेरी वीडियो देखेगी फॉर श्योर अभी, ठीक है। उनकी बात कर रही हूँ, उनको पता भी है, रोज फोन करके वो किसी को बोल रही है कि मेरा ये खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा ये खराब है। भाई मुझे उस बंदी को साल हो गया एक देख देख यही बोलती हूँ कि सब खराब है। तो बहन जब तुम ये करोगी ना कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो वही आएगा, वही होगा। इसलिए नहीं होगी इंप्रूव लाइफ। मत करो गॉसिप, शांत रहो, उसको कभी कभी शेयरिंग कर लो, ठीक है, बट गॉसिपिंग में मत जाओ कि भाई इसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है। अपने काम से काम रखो ना भाई, चीजें अच्छी आएंगी लाइफ में। इंप्रूव करनी है लाइफ तो हैबिट सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। इन कंक्लूजन में यही कहूंगी अगेन कि बिलीव करो, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, यूनिवर्स में अफर्मेशंस भी वही डालो जो तुम्हें चाहिए, फोकस अपना उसी चीज पे रखो जो तुम्हें चाहिए। फोकस नेगेटिव पे रखोगे जैसे वो गॉसिप करके रखती है तो वही चीज आएंगी। फोकस उसी बारे में बात करो ना भाई, पैसा 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 चाहिए, लव चाहिए, करियर चाहिए, जो चाहिए, अपना फोकस उस पर ही रखो तो वो आएगा। जो चीज अफर्मेशन यूनिवर्स में डालोगे वो तुम्हें मिलेंगी, क्योंकि यूनिवर्स सुनता है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।